मत के इस सफर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। सबसे पहले अहम खबर से आपको अपडेट करें। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान और मगरबी ममालिक की सूरत हाल मुख्तलिफ है। पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश जैसे ममालिक में कोरोना तेजी से नहीं फैला। वजीर आजम इमरान खान ने कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए कहा कि तरक्की पजीर ममालिक कोरोना के अलावा गुर्बत से भी लड़ रहे हैं। तरक्की पजीर ममालिक कोरोना के अलावा गुर्बत से भी लड़ रहे हैं। हमने गरीबों की इमदाद के लिए कोरोना रिलीफ पैकेज शुरू किया। एहतियाती तदाबीर के बावजूद कोरोना तेजी से फैल रहा है। कोरोना वायरस के बायस 2.5 करोड़ खानदान बेरोजगार हुए। पाकिस्तान में 25 मिलियन यौमिया उजरत पर काम करने वाले लोग हैं। लॉकडाउन की वजह से लाखों लोगों को गुर्बत का सामना था। लॉकडाउन खत्म करने का फैसला किया ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। 10 लोग नौजवानों पर रजाकार फोर्स बनाई है। दूसरी जानिब उनका कहना था कि हमें लॉकडाउन के दौरान अवाम की मुश्किलात को भी देखना है। कैश पर गेम इस मसले का कलीलुल मयाद हल है। आइंदा बरसों में आने वाले चैलेंजेस का सामना पूरी दुनिया को है। रवां साल हमारे मुल्क के लिए बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा है। माली मुश्किलात के बावजूद 1 लाख खानदानों में कैश रकम तकसीम कर चुके हैं। कोरोना वबा के खिलाफ मुश्तरका आलमी रद्द अमल होना चाहिए। The experience of the developed world is completely different to what we are facing in the developing world. And in countries like India, Pakistan, Bangladesh, specifically the Indian subcontinent, our experience is somewhat different. Firstly, the speed at which COVID-19 spread in Europe and in the United States, we are not experiencing that same sort of speed. On the other hand, we are still facing rising number of cases, and we still haven't reached our peak here. But from day one, the difference between, say, what we've seen in Europe and the United States, and in fact even in China, the difference is that we had to face this twin challenge. One was the growth of the virus, so hence the lockdown. But the bigger challenge, and increasingly in our countries, the bigger challenge is how to mitigate the effects of lockdown on our population with this rising poverty. To give people an example of what we are facing in Pakistan, and I think it's the same sort of situation in India and possibly in Bangladesh. In Pakistan, we have 25 million workers who are either daily wages or get paid weekly or are self-employed. So when we locked down like the whole of the world to stop the spread of the virus, all these people became unemployed. And when you're talking about 25 million workers, you're talking about 25 million families. And actually it has affected round about almost 120, 150 million people. And these 120 and 50 million people face stark poverty. Unless the men or the women who were working, unless they work, they cannot feed their families. So what we did was, and I'm very proud of my government, we came up with this cash transfer program. And we touched 15 million families. So far we have touched 15 million families with cash transfers. And this is what's mitigated the effects of the lockdown. But this is only a short-term solution. So therefore, despite the rising cases in our country, we have decided to go and ease the lockdown. We have started to open up our businesses, construction industry, so that people can find employment, because there's no way the government can give handouts to so many people. And because of this huge numbers of the informal economy, the only way we can reach our people is by allowing them to work.
डायरेक्टर न्यूज टीवी टुडे हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मोहम्मद हनीफ कमर साहब। मोहम्मद हनीफ कमर साहब, आप कैसे देखते हैं कि वजीर आजम इमरान खान का कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म से वीडियो लिंक के जरिए खिताब में कहना था कि पाकिस्तान में 2 करोड़ 50 लाख मजदूर योमिया उजरत पर काम कर रहे हैं और हमारे लिए बड़ा चैलेंज कोरोना वबा से में गुर्बत से निपटना है। आप हुकूमती इकदाम को कैसे देखते हैं कि काफी हैं? जी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आलमी इक़्तिसादी फोरम पर भी उन्हीं ख्यालात का इजहार किया है जो यहाँ वो लोकल पाकिस्तान में अपने ख्यालात का इजहार करते रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर का पहले दिन से ये मौक़िफ़ रहा है कि कोरोना के खिलाफ इक़दाम उस तरह पाकिस्तान में नहीं किए जा सकते जिस तरह वेस्टर्न ममालिक में किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे गुर्बत ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है और डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं। अगर लॉकडाउन कर दिया जाएगा तो इससे डेली वेजेस मुतासर होंगे, कारोबार मुतासर होगा और जो मईशत है वो बुरी तरह अफेक्ट करेगी, जिससे उतना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा जितना शायद कोरोना से वैसे ना हो। यही ख्यालात वो अक्सर पाकिस्तान में इनका इजहार करते रहे और इसी वजह से पाकिस्तान में कंफ्यूजन रहा लॉकडाउन करने या ना करने के मामले में। लॉकडाउन जब किया भी हुकूमत ने तो वो इतना मुअस्सर नहीं रहा जितना मुअस्सर के मगरबी ममालिक में या दीगर ममालिक में था। इसकी वजह भी हुकूमत के अंदर पाई जाने वाली ये कंफ्यूजन थी कि वहाँ की हुकूमत इमरान खान की क़यादत में लॉकडाउन नहीं करना चाहती थी, जबकि कुछ सूबाई हुकूमतें, पीपल्स पार्टी की हुकूमत इस मामले में और अपोजिशन चाहती थी कि सख्त तरीन लॉकडाउन किया जाए ताकि इस वबा से निपटा जा सके। तो इसी जो कंफ्यूजन को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये बात की है वहाँ के आलमी इक़्तिसादी फोरम में भी, और साथ ही साथ इमदाद की अपील की है और कहा है कि पाकिस्तान की मीशत से निपटने के लिए जो ममालिक हैं इमदाद देने वाले उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान को भी इमदाद दें। साथ साथ उन्होंने जो बड़ा खतरनाक जो इशारा किया वो ये कहा है कि जनूबी एशियाई ममालिक और पाकिस्तान में कोरोना आने वाले दिनों में मजीद बढ़ सकता है। इससे आम आदमी ये सोचने पर मजबूर है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ये समझते हैं कि कोरोना की वबा मजीद फैल सकती है, मजीद उसमें तेजी आएगी और इस हवाले से शवाहिद भी हैं और तेजी आ भी रही है, तो ऐसी सूरत में जबकि वबा तेजी से फैल रही है, लॉकडाउन ना करना और इसका जवाब पेश करना, ये मंतक समझ में नहीं आ रही है आम आदमी के, क्योंकि उन दिनों में तो लॉकडाउन किया गया जब यहाँ पे वबा कम थी और इसका असर कम लोगों पे था, लेकिन जैसे ही उसकी असर पजीरी बढ़ती जा रही है तो लॉकडाउन बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। ये डबल स्टैंडर्ड ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर कंफ्यूजन का बायस है बल्कि आलमी इक़्तिसादी फोरम पे भी ये बात यकीनी तौर पर इसी कंफ्यूजन की मज़हर है और डिस्कस हुई होगी कि प्राइम मिनिस्टर एक साइड पे तो ये बात कर रहे हैं कि बीमारी बढ़ रही है और दूसरी जान दुकानें खोल रहे हैं और लॉकडाउन खोल रहे हैं। सही, बहुत शुक्रिया मोहम्मद हनीफ कमर साहब। एक तरफ तो ये बीमारी बढ़ रही है, दूसरी तरफ लॉकडाउन खोला जा रहा है, जबकि कोरोना वायरस वबा जो कि तेजी से फैल रहा है, पूरी दुनिया में लॉकडाउन इस वक्त जारी है। भारत की जानिब से एलओसी पर बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला ना थमा। भारत की नक्याल सेक्टर पर गोलाबारी की गई जिससे 3 अफराद जख्मी हो गए। नक्याल सेक्टर पर शहरी आबादी को निशाना बनाया, 3 शहरी जख्मी हुए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। भारत रमा साल जंगबंदी की 1081 मरतबा खिलाफ वर्जियां कर चुका है और भारतीय फोर्सेज मुसलसल शहरियों को निशाना बना रही है। भारत की इश्तियाल अंगेजी खित्ते में अमनो सलामती के लिए खतरा है। मुतअद्दिद बार भारतीय सिफारतकार को दफ्तर खारिजा तलब करके भारतीय शरंगेज पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं जहां पर भारत इश्तियाल अंगेजी से बाज ना आया। आपको बताएं कि भारत की नक्याल सेक्टर पर गोलाबारी की गई जिससे 3 अफराद जख्मी हो गए। नक्याल सेक्टर पर शहरी आबादी को निशाना बनाया गया, 3 शहरी जख्मी हुए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। भारत रवा साल जंगबंदी की 1081वीं मरतबा खिलाफ वर्जियां कर चुका है और भारतीय फोर्सेज मुसलसल शहरियों को निशाना बना रही है। भारत की इश्तियाल अंगेजी खित्ते में अमनो सलामती के लिए खतरा है। मुतअद्दिद बार भारतीय सिफारतकार को दफ्तर खारिजा तलब करके भारतीय शरंगेजियों पर एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया है। मज़ीद जानते हैं टीवी टुडे के डेप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान राना से। जी कामरान, बताइएगा कि नक्याल सेक्टर पर गोलाबारी के हवाले से दफ्तर खारिजा ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और भारतीय गोलाबारी से जख्मी होने वाले शहरियों की हालत कैसी है?
رانا کامران اگر آپ ہمیں سن پا رہی ہیں تو بتائیے گا کہ جو اس وقت صورتحال ہے، دفتر خارجہ نے احتجاج ریکارڈ کروایا ہے بھارتی اشتعال انگیزی پر۔ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، دوبارہ سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر بھارت کی نکیال سیکٹر پر گولہ باری کی گئی جس سے 3 افراد زخمی ہوئے۔ نکیال سیکٹر پر شہری آبادی کو نشانہ بنایا 3 شہری زخمی ہوئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بھارت رواں سال جنگ بندی کی 1081 مرتبہ خلاف ورزیاں کر چکا اور بھارتی فورسز مسلسل شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ بھارت کی اشتعال انگیزی خطے میں امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ متعدد بار بھارتی سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کر کے بھارتی انگیزیوں پر احتجاج بھی ریکارڈ کروایا گیا۔ مزید اس حوالے سے جانتے ہیں ہمارے ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد کامران رانا سے۔ جی کامران، بتائیے گا کہ نکیال سیکٹر پر گولہ باری کے حوالے سے دفتر خارجہ نے احتجاج ریکارڈ کرایا اور بھارتی گولہ باری سے زخمی ہونے والی شہریوں کی حالت کیسی ہے؟ جی بالکل، یہ انڈیا کی طرف سے جو ایل او سی پر ہمیشہ اشتعال انگیز فائرنگ کرتے رہتے ہیں اور اس کی وائلیشن کرتے رہتے، اس حوالے سے جو 2 گاؤں ہیں جو بالکل ایل او سی کے پاس ہیں، ایک آلموسٹ کھرنی اور یہ گاؤں کا نام ہے، یہاں پہ 3 افراد جو ہیں یہ ان کی شدید جو زخمی ہوئے تھے اور ان کو فوری طور پر جو ہے وہ وہاں پہ ریفر کر دیا گیا اسپتال میں، لیکن اب ان کی پوزیشن جو ہے وہ بہتر ہے، وہ حضرت صبح ہے، لیکن ایک جو مسلسل اس کی طرف سے چل رہا ہے سسٹم انڈیا کی طرف سے، اس نے کافی پریشانی کی۔ اسی وجہ سے دفتر خارجہ میں آج بھارتی ہائی کمیشنر کو بھی بلایا گیا تھا، اس پہ احتجاج ریکارڈ کرایا گیا تھا کہ پاکستان میں کبھی بھی امن کے لیے، جب بھی پاکستان امن کے لیے کوششیں کرتا ہے تو انڈیا جو ہے وہاں پہ اپنا نیگیٹو رول پلے کرتا ہے، اور ہمیشہ اس نے پاکستان کے امن کو اور افغانستان کے امن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ ایک ہمیشہ سے انڈیا کا جو رویہ رہا ہے کہ اس نے ہمیشہ سے ہی ایل او سی پر اشتعال انگیز فائرنگ کی ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو بلوچستان کی جب بات کریں کہ ماچھ اور قید کے علاقے میں دہشت گردی ہوئی ہے، تو تمام انڈیا جو ہے یہ مسلسل اس طرح کی وائلیشن جو ہے وہ کرتا رہتا ہے۔ اچھا رانا کامران، یہ بتائیے گا کہ آپ نے بلوچستان کی بات کی ہے تو بلوچستان میں بھی سازشیں کر رہا ہے، اس حوالے سے پاکستان کے سفارتی حلقے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ جی دیکھیے، وزیر خارجہ شاہباز قریشی بھی اس چیز پہ بات کر چکے ہیں، اور اس سے پہلے یہ انڈیا کو متعدد دفعہ یہ وارنٹ دی جا چکی ہے اور اس سے ریکویسٹ بھی کی جا چکی ہے، اس کو ہر لحاظ سے جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں، بین الاقوامی قوتیں، ان کو بھی اس میں انوالو کیا گیا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ہمیشہ بلوچستان میں دار اندازی کرتا ہے، اور پاکستان میں جو امن کی کوششوں کو سب سے زیادہ جو کردار ہے سبوتاژ کرنے کا، وہ اس وقت انڈیا کا ہے۔ انڈیا نے ہمیشہ ہی پاکستان میں اس کو امن کو سبوتاژ کیا، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ ایف سی کی گاڑیوں پر حملہ کیا گیا بلوچستان میں، وہاں پہ ایف سی کی گاڑیوں پہ حملہ کیا گیا، اور وہاں پہ ان کے جو تقریباً 7 کے قریب جو پاکستان جو پاک فوج کے 7 کے قریب جوان ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور ان کی جو ان پہ جو اس طرف سے جو حملہ کیا گیا ہے ان کی طرف سے، اس میں تقریباً 7 کے قریب نوجوان جو وہ شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک مسلسل جو ہے یہ انڈیا کی طرف سے مسلسل اس طرح کی رانا کامران، یہ بتائیے گا کہ خبروں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو شہر اقتدار آج خاصا گرم رہا، ایک اور وفاقی وزیر ہیں نیب کے ریڈار پر آ گئے۔ حکومت اور اپوزیشن حلقوں میں وفاقی وزیر نور الحق قادری پر وزارت مذہبی امور کی جو عمارت کی لیز بزنس پارٹنر کو دینے کا الزام خوب گردش کر رہا ہے۔ اب نور الحق قادری کے خلاف شکایت کی چھان بین کا حکم بھی دے دیا گیا۔ وزارت مذہبی امور کی جو عمارت ملی بھگت سے بزنس پارٹنر نعمان خان کو لیز پر دی گئی ہے، اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس اور اصل بات کیا ہے، قصہ کیا ہے؟ جی بالکل، اگر ایک جو نئی بات سامنے ہے کہ وفاقی مذہبی امور جناب ان کے خلاف بھی جو ہے وہ انکوائری شروع کر دی گئی ہے، اور یہ کہنا ہے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آپ سن پا رہے ہیں؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے۔ جی، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نور الحق کے خلاف جو یہ رپورٹ ابھی ہے یہ پیش ہوگی، اور اس کے علاوہ میں آپ کو کہوں کہ اکرم درانی کے خلاف بھی نیب نے چھان بین شروع کر دی ہے، اور جو بنگلہ کے ایک وزیر ہے کے پی کے کی، ان کے خلاف بھی نیب نے جو ہے وہ چھان بین شروع کر دی ہے، نور الحق قادری کے خلاف بھی انہوں نے چھان بین شروع کر دی۔ صحیح، بہت شکریہ آپ کا رانا کامران تمام تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کے لیے، جہاں پر ایک اور وفاقی وزیر نیب کے ریڈار پر آ گئے ہیں، جہاں پر جو چھان بین کا عمل ہے وہ جاری ہے۔
हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने पर मामला तय पा गए। जीटी रोड पर सफर करने वालों को 20% किराए में छूट, जबकि मोटरवे पर सफर करने वालों को पूरा किराया अदा करना पड़ेगा। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर आपको बताएं कि डेडलॉक बरकरार थे हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान। जहां पर ट्रांसपोर्ट नहीं चलाई गई थी, हुकूमत ने कहा था कि ट्रांसपोर्ट चला दी जाएगी, मगर ट्रांसपोर्टर एहतजाज कर रहे थे, वो ट्रांसपोर्ट नहीं चला रहे थे। मगर बाज़ हलकों में कुछ जो हल्के बने हुए थे, कुछ लोगों ने ट्रांसपोर्ट चला दी थी, मगर ज्यादा अक्सरियत जो ट्रांसपोर्टर्स थे मालिकान, उन्होंने ट्रांसपोर्ट नहीं चलाई थी। अब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने पर मामला थे जो वो तय पा गए हैं। जीटी रोड पर सफर करने वालों को 20% किराए में छूट, जबकि मोटरवे पर सफर करने वालों को पूरा किराया अदा करना पड़ेगा। ये अहम खबर है और एक अच्छी खबर है, जहां पर परदेसी अपने घरों को जा सकेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करते हुए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शुएब हाशमी से। जी शुएब हाशमी, हुकूमत ने ट्रांसपोर्टर्स को कैसे मनाया? ये बिल्कुल हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान बिलाखर जो सख्त जंग जारी थी, जो डेडलॉक बरकरार था, वो बिलाखर खत्म हो गया और हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के सामने कुछ हद तक हमें जो है वो टेकने पड़े। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से मुतालबा किया गया था कि वो जो मुतालबा ये किया गया था कि किरायों में जो कमी जो है इसको जो है वो खत्म किया जाए। ताहम इस सूरत हाल पर इत्तेफाक हुआ है कि जो ट्रांसपोर्ट जो है वो जीटी रोड पर रवाना होगी, उसमें 20% तक किराए जो है उनमें रियायत दी जाएगी। अलबत्ता जो ट्रांसपोर्ट जो है वो बजरिया मोटरवे दूसरे शहरों में जाएगी, उसमें जो किराए की सहूलत है वो मुसाफिरों को नहीं दी जाएगी। इस हवाले से मुसाफिरों का एक ये भी मुतालबा था कि आमतौर पर कई खानदान या कई फैमिली के अफराद जो है वो सफर करते हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि उन्हें एक सीट जो है उसको छोड़कर उसके फासले पर दूसरी सीट पर बिठाया जाए। तो इस हवाले से ट्रांसपोर्ट का मुतालबा जो है मंजूर हो गया। इसमें तफसीलात देते हुए ये बताया गया कि ट्रांसपोर्टर जो हैं वो अपनी बसों में ऐसे खानदान के अफराद जो एक शहर से दूसरे शहर इकट्ठे जाना चाहते हैं तो वो एक दूसरे के साथ बैठ सकते हैं। ताहम इन्हें मास्क और सैनिटाइजर जो है वो लाजमी करार दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ ये कहा गया है कि बसें जो है उन्हें डी-इंफेक्ट जो है वो किया जाएगा जब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर पहुंचेंगी। इसके अलावा आपको बताता चलो कि मियां असलम इकबाल की जानिब से जो मीडिया से गुफ्तगू की गई, जिससे उनका ये कहना था कि ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से एक मुतालबा किया गया कि जो टूल प्लाजे हैं उसमें उन्हें जो है वो मोखर उनको किया जाए। इस हवाले से मियां असलम इकबाल का कहना था कि जिससे मोखर जो है वो भी फिलहाल करना इनके बस में नहीं है। ताहम ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से एक और मुतालबा जो है वो भी सामने आया, क्योंकि अक्सर मालकान की जो बसें हैं वो लीज पर ली गई हैं और इस हवाले से बैंकों से उन्हें फेवर जो है वो दिलवाई जाए। बहुत शुक्रिया शुएब हाशमी तमाम सूरत हाल से अपडेट करने के लिए, जहां पर आखिरकार हुकूमत ने ट्रांसपोर्टर्स को मना कर लिया। सिंध में कोरोना वायरस की तशवीशनाक सूरत हाल, कोरोना फैलाव को वजीर आला सिंध ने लम्हा फिक्रिया करार दे दिया। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर वजीर आला सिंध ने कहा कि लम्हा फिक्रिया है सिंध में जिस तेजी से कोरोना वायरस फैल रहा है। सिंध में कोरोना वायरस की तशवीशनाक सूरत हाल सामने आई, जिसमें कोरोना फैलाव को वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने लम्हा फिक्रिया करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि बहुत तेजी से फैल रहा है, अब अवाम को एहतियात करना होगी और अवाम से मिलकर ही इससे निपटा जा सकता है। सिंध में कोरोना वायरस की तशवीशनाक सूरत हाल है, कोरोना फैलाव को वजीर आला सिंध ने लम्हा फिक्रिया करार दे दिया है। सिंध की बात की जाए तो सिंध में कोरोना वायरस की तशवीशनाक सूरत हाल पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अवाम को अब पूरी एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा। दूसरी जानिब उनका कहना था कि अवाम से मिलकर ही इस सूरत हाल से निपटा जा सकता है। मजीद तफसीलात जानते हैं टीवी टुडे के ब्यूरो चीफ कराची से मलिक मुनव्वर हुसैन से। मलिक मुनव्वर हुसैन, बताइएगा कि सिंध में कोरोना वायरस के वार तेज हो रहे हैं, क्या सूरत हाल है, और मुराद अली शाह ने जिस तशवीश का इजहार किया इस हवाले से हुकूमती इक़दामात भी कर रहे हैं या कि नहीं? जी जवाब, पहले दिन से ही वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह तो कोरोना वायरस के हवाले से काफी सीरियस दिखाई देते हैं और डेली बेसिस पर जो है उन्होंने रोजाना की आगाही भी देते हैं। जो इनपुट वगैरह जो केसेस होते हैं, जो रिपोर्ट हो रहे होते हैं, उस बारे में भी वो अपने सूबे की आवाम को और लोगों को मालूम भी लेते हैं, उनसे आगाही भी देते हैं। तो हम जहाँ तक इक़दाम की बात है तो हुकूमत सिंध ने ऐलानात तो बहुत अच्छे किए और इब्तदाई दिनों में तो काफी कुछ देखने को भी आया और सूरत कंट्रोल में रही। जब से लॉकडाउन में नरमी हुई है उस वक्त से कोरोना वायरस के केसेस में भी शिद्दत आ गई है और खासतौर पर कराची में जो है लोकली सतह पर केसों की जो तादाद है वो काफी बढ़ गई है, वो तशवीशनाक हद तक उसमें इजाफा हो रहा है।
अब अगर हम बात करें मार्केटों की, तो मार्केटों में क्योंकि ईजारी की शॉपिंग जो है वो अरूज पर पहुंच चुकी है और लोगों की बेतहाशा जो है वो रश, अब आवाम का जो अमन आया है उसमें ना ही कोई सोशल डिस्टेंस नजर आया है और ना ही कोई समाजी फासले के ऊपर या कोई एहतियाती तदबीर के ऊपर जो है अमल दरामद दिखाई देता है। अब इस हवाले से हुकूमत सिंध। अच्छा मलिक मुनव्वर हुसैन, बताइएगा कि सिंध में नमाज ईद और मजहबी इज्तिमात की इजाजत के हवाले से SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए हुकूमती हिकमत अमली क्या है? जी, आज सूबाई वज़रात सैयद नासिर हुसैन शाह, सईद गनी मुर्दाबाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने इस बारे में वाज़ह तौर पर यह आज अदा कर दिया है कि बड़े जो मकामात होंगे, बड़ी मसाजिद और बड़े ग्राउंड वाली जगह जो है जहाँ ईद नमाजें होती हैं, उस पर उन्होंने कहा है कि उनको इजाजत है, ईद नमाज होगी, मगर सोशल डिस्टेंस और फासलों के हवाले से जो है उन्होंने कहा है कि इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वो ईद से पहले ही उन जगहों को सिक्योर कर लें और वहाँ पे जो निशानदेही है सोशल डिस्टेंस के हवाले से उसके ऊपर जो यकीनी बना उसके ऊपर अमल दरामद कराएं। और उन्हें कोई एतराज नहीं है कि नमाज भी होगी और जो अपना आखिरी जुम्मतुल विदा का जो मुबारक दिन होता है उसकी जो जुलूस SOPs पर अमल करना होगा। तो दूसरी जानिब मलिक मुनव्वर ये भी बताइएगा कि आज से कराची में शुरू होने वाली इंटरसिटी बस सर्विस में कोरोना SOPs के हवाले से क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है? जी, हुकूमत ने सिंध इंटरसिटी बस की जो है इजाजत नहीं दी, ताहम कुछ लोकल सतह पर ट्रांसपोर्ट जो है कराची कैंट स्टेशन से 4 बजे के वक्त जो है वो कुछ चलाई गई हैं और अंदरूनी मुल्क जो है वो रवाना भी हुए। शराब बोर्ड के जो बस स्टैंड अड्डा है उससे भी जगह से भी चलाई गई हैं और दीगर जगहों से भी बसें अंदरूनी मुल्क के लिए रवाना हुई हैं। मगर बहुत सारी जगहों पर जैसे कि हैदराबाद या रास्तों में और भी दीगर शहर आते हैं तो वहाँ पर भी उनको रुकावटें आई हैं और हुकूमत सिंध की इंतजामिया, कमिश्नर कराची, डिप्टी कमिश्नर वगैरह थे, उन्होंने बसों को रोका है और उनके खिलाफ कार्रवाई की है। तमाम इंटरसिटी बस के जो एसोसिएशन के रहनुमा हैं उन्होंने कहा है कि वो बसें अब हर हालत में चलाएंगे और काफी अरसे से जो है अपना तमाम कारोबार जो ट्रांसपोर्ट बंद रखी हुई थी जिसकी वजह से वो काफी अरसे से ट्रांसपोर्ट को बंद रखा हुआ था, मगर अब बसें चलाएंगे। मलिक मुनव्वर हुसैन, तमाम तफसीलात से अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। दूसरे शहरों में रहने वाले परदेशियों के लिए एक अच्छी खबर, क्योंकि हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। किस बुनियाद पर हुए ये आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। मुश्किलें, आजमाइशें हमारे अज़्म का इम्तहान हुआ करते हैं। हमारा ईमान हमें रसद भी पहुंचाता है और मदद भी। हमारे हाथ हाथों की तंजीम करते हैं। हमारे पास जो आता है वो तकसीम करते हैं। हम कभी इंक्यूबेटर, कभी वेंटिलेटर बनकर अटकती रुकती सांसों की जान हुआ करते हैं। गम की घटाओं में खुशी की आगोश बन जाते हैं हम और कड़कती धूप में साइबान हुआ करते हैं। मस्जिद, मंदिर और कलीसाओं तक, शहर शहर से गांव तक, हम सारा पाकिस्तान हुआ करते हैं। अल खिदमत फाउंडेशन, खिदमत के इस सफर में तुम अकेले नहीं। मैं हूं अली तारिक। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है मैं रखूंगा बाखबर सबसे पहले। खुशामदीद। मुल्क भर में रेल का पहिया 2 माह बाद चल पड़ा। परदेशियों की घरों को वापसी शुरू हो गई। लाहौर से पहली ट्रेन सुबह 6:30 बजे रावलपिंडी और पाकिस्तान एक्सप्रेस रावलपिंडी से कराची के लिए रवाना हुई। कोरोना वायरस के बायस बंद रेलवे ऑपरेशन 2 माह बाद बहाल हो गया। मुल्क भर में ट्रेनें चलना शुरू हो गई हैं, जहां पर पहली ट्रेन पाकिस्तान एक्सप्रेस रावलपिंडी से सुबह 6 बजे कराची के लिए रवाना हुई, जबकि दूसरी ट्रेन लाहौर से रावलपिंडी के लिए रवाना हुई। कराची से भी ट्रेन ऑपरेशन 56 रोज बाद बहाल हो गया और अवाम एक्सप्रेस 456 अब मुसाफिरों को लेकर पेशावर के लिए रवाना हुई। कराची से मजमूई तौर पर 9 ट्रेनें अपनी मंजिल की जानिब रवाना हुई। रेलवे स्टेशन पर सैनिटाइजिंग वॉक थ्रू गेट नस्ब किए गए। रेलवे इंतजामिया की जानिब से 30 ट्रेनों का शेड्यूल जारी किया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेनों की रिजर्वेशन दफातर बंद है, बुकिंग सिर्फ ऑनलाइन की जाएगी। शुगर इंक्वायरी कमीशन की तहकीकात में फ्रांसिक का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। रिपोर्ट वजीर आजम इमरान खान के सामने पेश की जाएगी। FIA के सरबराह वाजिद ज़िया कल रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को पेश करेंगे। 200 से ज़ायद सफ़ात की रिपोर्ट के साथ शुगर मिल्स मालिकान के बयानात भी लगाए गए हैं। रिपोर्ट में अहम शख्सियात पर टैक्स चोरी का इल्जाम आयद किया गया है और टैक्स चोरी पर कार्रवाई करने की सिफारिश भी की गई है।
وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ جب تک ویکسین ایجاد نہیں ہوتی ہمیں کرونا وائرس کے ساتھ ہی رہنا ہوگا. لگتا ہے کہ اس سال یہ وبا موجود رہے گی. ٹیلی ہیلتھ پورٹل کا اجرا کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے پاکستان میں ہیلتھ سسٹم پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی. کرونا وائرس ختم ہو گیا تب بھی ہمیں ہیلتھ ٹیلی پورٹل کی ضرورت پڑے گی. وائرس کے باعث ملک پر مشکل وقت آیا ہوا ہے. دور دراز علاقوں میں صحت سہولیات کے لیے رضاکار اہم کردار ادا کریں گے. کورونا وائرس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ ابھی بھی افیکٹڈ ہیں اور ہمیں لگتا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ رہے گی یہ وائرس اس سال تو رہے گی انشاءاللہ جب تک ویکسین نہیں نکلتی. اور اصل میں تو اس کا حال ایک ویکسین ہے. تو جب تک ویکسین نہیں ہے ہم نے اس وائرس کے ساتھ گزارا کرنا ہے. اور اس کے ساتھ گزارا ایک وہ قوم کر سکتی ہے جدھر ساری قوم مل کے فیصلہ کرے کہ ہم نے اس مشکل وقت کا سامنا کرنا ہے. ہمارے ملک میں بدقسمتی سے ہم نے اتنا اپنا توجہ بھی نہیں دی اپنی ہیلتھ شعبے کے اندر, اپنے ہاسپٹلز میں, اپنی ہیلتھ سروسز میں. تو ہمارے لیے زیادہ بڑا چیلنج ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اب تک جس طرح پھیلی ہے اس طرح ہمارا مقابلہ اگر مغرب کی ممالک سے کریں تو ہمارا اس طرح کے برے حالات نہیں ہیں. ابھی تک ہمارے ہسپتالوں میں وہ اللہ کا شکر ہے بڑا کہ وہ حالات نہیں جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں باہر کے ملکوں میں. لیکن کیونکہ یہ وائرس اس سال تک ہمیں اس کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا اور انشاءاللہ اس کے بعد ویکسین نکلائے گی, تو اس سال ساری قوم نے جتنی بھی ہماری ریسورسز ہیں ہم سب کو ان کو ملا کے ساری قوم مل کے اس کا مقابلہ کرے گی. وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا کہتے ہیں کہ کرونا کے باعث محکمہ صحت میں اقدامات کے آپشن کھلے جن کا مستقبل میں فائدہ ہوگا. ایسی خواتین ڈاکٹر جو اپنے گھروں تک ہی محدود ہو جاتے ہیں وہ ایسے موقع پر ٹیلی ہیلتھ پورٹل کے ذریعے متاثرین کو مشورے دے سکتی ہیں. کورونا وائرس نے جہاں ہمیں بہت زیادہ متاثر کیا ہے پاکستانیوں کو یا پوری دنیا میں لوگوں کو, وہاں اس نے بہت سارے ایسے نئے مواقع بھی فراہم کیے ہیں کہ جس کے ذریعے میڈیکل کیئر یا ہیلتھ کیئر کے نئے کچھ دروازے کھلے ہیں, کچھ نئے مواقع ایسے کھل رہے ہیں کہ جو اب ہمارے فیوچر کی ہیلتھ کیئر کا حصہ بن جائیں گے. ٹیلی ہیلتھ ان میں سے ایک ہے. ہم اس کا ذکر بڑے عرصے سے سنتے آ رہے تھے, لیکن اس کا جس طریقے سے استعمال کرونا وائرس کے آؤٹ بریک کے دوران ہوا ہے لاہور میں, کراچی میں, وہ اس کی مزید نہیں ملتی. اور اب جو یہ حکومت کی سطح پہ ٹیلی ہیلتھ .gov.pk یعنی کہ حکومت پاکستان خود یہ لانچ کر رہی ہے, تو یہ ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے توسط سے پاکستانی جن کو سائن سمٹمز ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے یا کوئی تشویش ہے ان کو یا شک ہے, وہ صرف اپنا ٹیلی فون کے ذریعے یہ اب ہدایات جو ہیں وہ ڈاکٹروں سے لے سکیں گے. پاکستان میں 24 گھنٹوں میں کرونا کے 46 مریض انتقال کر گئے. اموات 985 ہو گئی. مزید 2000 افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریضوں کی تعداد 45,898 ہو گئی. 13,101 مریض صحت یاب ہو چکے. پاکستان میں کرونا وائرس سے مزید 40 مریض انتقال کر گئے جس سے اموات کی تعداد 985 ہو گئی. سندھ میں 299, پنجاب میں 289, خیبر پختونخوا میں 345, بلوچستان میں 38, گلگت بلتستان میں 4, آزاد کشمیر میں 1 اور اسلام آباد میں 9 مریض انتقال کر چکے ہیں. دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 3,27,000 ہو گئی. مریضوں کی تعداد 50,20,000 تک جا پہنچی. 19,82,000 افراد صحت یاب ہو گئے. کرونا وائرس دنیا بھر میں 3,27,000 افراد کو نگل گیا. مریضوں کی تعداد 50,20,000 تک جا پہنچی. امریکہ میں 15,74,000 افراد میں وائرس منتقل ہو چکا ہے. 93,700 افراد اب تک ہلاک ہو چکے ہیں. کرونا سے متاثرہ تحریک انصاف کی ایم پی اے شاہین رضا انتقال کر گئی. شاہین رضا کی 4 روز قبل طبیعت ناساز ہوئی تھی. ایم پی اے شاہین رضا کو علاج کے لیے DHQ شفٹ کیا گیا اور وینٹیلیٹر لگایا گیا. حالت بگڑنے پر لاہور منتقل کیا گیا جہاں وہ انتقال کر گئی. شاہین رضا گوجرانوالا ضلع میں خصوصی نشست پر PTI کی اکلوتی ایم پی اے تھی.
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मौजूदा सूरत हाल को लम्हा फिक्रिया करार देते हुए कहा कि हमें अपने आप को बचाने के लिए सही फैसले करने होंगे। सिंध में कोरोना वायरस की सूरत हाल से मुतल्लिक बयान में वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना था कि सिंध में एक रोज में कोरोना के 1017 केसेस रिपोर्ट हुए, जो अब तक के एक रोज के सबसे ज्यादा केसेस हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 6164 केस किए गए, 904 मजीद मरीज सेहतयाब होकर अपने घरों को चले गए हैं। हुकूमत सिंध ने मसाजिद में नमाज ईद समेत मजहबी इज्तिमात की इजाजत दे दी। तयशुदा ज़ाबिते पर अमल करते हुए जुमातुल विदा, खत्मुल कुरान और नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद किए जा सकते हैं। वज़ीर तालीम सईद गनी का कहना था कि इज्तिमात और इबादात में ज़ाब्ता कार पर अमल दरामद करना होगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर यह है कि हुकूमत बलूचिस्तान ने स्मार्ट लॉकडाउन में 15 रोज के लिए तौसीह कर दी। स्मार्ट लॉकडाउन 2 जून तक बरकरार रहेगा। बलूचिस्तान में लॉकडाउन के दौरान तमाम शॉपिंग मॉल्स, मार्केटें, दुकानें, गोदाम, ऑटो रिपेयर शॉप्स और हेयर कटिंग सैलून्स को सुबह 3 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की इजाजत होगी। वजीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर झगड़ा का कहना है कि सूबे में टेस्टों की तादाद पंजाब के बराबर है। अगला बजट सेहत की शोबे में सरमायाकारी का बजट होगा। मजीद उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। टेस्टिंग कैपेसिटी अक्सर, और इस पे आगे बात भी करेंगे, लोग कहते हैं कि टेस्टिंग कैपेसिटी बड़ी नहीं। अगर आप पर कैपिटा देख ले तो हमारी और पंजाब की टेस्टिंग कैपेसिटी बराबर हो गई है। हमारी पब्लिक सेक्टर कैपेसिटी पंजाब और सिंध दोनों के बराबर है, और प्राइवेट सेक्टर कैपेसिटी हम ज्यादा कर रहे हैं। और उस दिन असद उमर साहब ने कहा कि मुल्क में टेस्टिंग कैपेसिटी 30 गुना बढ़ी, खैबर पख्तूनख्वा में ये 50 गुना बढ़ी। राइट, तो जब आप जहां से स्टार्ट लेते हैं वहां से आप इंक्रीज कर, हमारी 2000 से ज्यादा कैपेसिटी है। कल तकरीबन 1650 टेस्ट हुए, हमारी औसत 5 दिन की 1500 से ऊपर हो गई है। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में हम इसको 2000 और महीने के अंदर हम इनको 3000 प्लस पे जो है वो ले जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी इदारों को मजबूत और फाल बनाने के लिए पुरअज़्म है। हमारे लिए फेडरेशन सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर इदारों की जानिब से शिकायत में कोताही बरतने के मामले पर बढ़ने का इजहार करते हुए तहकीकात का हुक्म भी दे दिया है। और अब खबर यह है कि मामले खसूसी उस्मान डार कहते हैं कि सिंध ने टाइगर फोर्स की खिदमत लेने से मुआसरत की। सिंध हुकूमत के साथ 2 हफ्ते से राबिते में थे। मजीद उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। ये बहादुर नौजवान जो कि मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियों में मसरूफ रहे, इन्होंने जिम्मेदारियां अंजाम दी, जिसमें सबसे बड़ी तादाद माह रमज़ान में मसाजिद के SOPs थे, जिसमें पाकिस्तान के इन बहादुर नौजवानों ने जिम्मेदारियां निभाई। उसके बाद एहसास का जो हमारा इमरजेंसी कैश सेंटर्स थे, में टाइगर फोर्स के नौजवानों ने जिम्मेदारियां निभाई। क्वारंटीन सेंटर्स पे जो 17,000 के करीब हेल्थ वर्कर्स थे, उनमें से बहुत बड़ी तादाद में वॉलंटियर्स ने क्वारंटीन सेंटर्स के ऊपर जिम्मेदारियां पूरी की हैं। इसके साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स, 4370 के करीब यूटिलिटी स्टोर्स पाकिस्तान में मुख्तलिफ अजला में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, और 19 के करीब जो आइटम्स पे अरबों रुपए की सब्सिडी दी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, वो इंश्योर करने के लिए वो तमाम आइटम्स स्टोर में। कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से LNG केस में तलबी के बावजूद साबिक वफाकी वजीर मिफ्ताह इस्माइल तहकीकाती टीम के रूबरू पेश न हो सके। लीगी रहनुमा की जगह उनके वकील ने नैब का सवालनामा वसूल किया। कौमी एहतसाब ब्यूरो पिंडी की तहकीकाती टीम ने साबिक वफाकी वजीर मिफ्ताह इस्माइल को पेशी के लिए तलब कर रखा था, मगर वो बाज नागजीर वजूहात की बिना पर नैब दफ्तर पेश न हो सके। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने एक बार फिर सियासी पेशन गोई करते हुए कहा है कि 31 जुलाई तक हुकूमती और अपोजिशन जमातों में झाड़ू फिर जाएगा। उनका इस हवाले से मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। 31 जुलाई तक बहुत सारी तहकीकातें होंगी। 31 जुलाई तक झाड़ू फिरेगा, और 31 जुलाई तक थोड़ा सा मार्जिन भी दे दें, क्योंकि जून का महीना मैं कोई वो मंत्री नहीं हूं या कोई प्रॉमिस नहीं हूं। 31 जुलाई मैंने कहा 15 दिन का मुझे मार्जिन दे के रखें,
اور شہباز شریف بڑے ٹارزن بنے ہوئے ہیں کہ میں یہاں رہوں. اس کو پتہ لگ گیا کہ میرا نام واچ لسٹ میں آ گیا اور میں جا رہا ہوں ECL میں, تو وہ ٹارزن بن رہا ہے. یہ سارے بزنس مین ہیں, اس کو پتہ ہے کہ وہ جا رہا ہے ECL میں, بلیک لسٹ میں اس کا نام آ چکا ہے. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کی قیادت میں کورونا کے خلاف شاندار کامیابیاں حاصل کی. بہترین لیڈر نہ صرف حکومت بلکہ عوام کی تربیت بھی کرتا ہے. فیاض الحسن چوہان کا ایک بیان میں کہنا تھا کہ وزیر اعظم کی کورونا ریلیف پالیسیز کو عالمی سطح پر پذیرائی مل رہی ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق دنیا کے لیے کورونا کے دوران پاکستانی عوام سے سیکھنے کو بہت کچھ ہے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں مسلم لیگ نون لیگ سیاسی جماعت کم, پروپیگنڈا سیل زیادہ ہے. کرپٹ لیگ رہنما محکمہ ایکسائز کا ایک جعلی لیٹر پھیلا رہے ہیں. بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے, لیکن جن کے ذہن شیطانی ہو ان کا کیا کریں. شہباز گل نے ایک بیان میں کہا کہ نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب روزے کا آغاز تازہ جھوٹے بیان سے کرتی ہیں. انہیں دنیا بھر کی ہر چیز کا علم ہے, بس یہ نہیں معلوم کہ ان کے اکاؤنٹس میں اربوں روپے کون ڈال گیا. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فردوس شمیم نقوی کہتے ہیں کہ سندھ بدترین حالات سے گزر رہا ہے. لوکل باڈیز کا نظام تباہ ہو چکا. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا مزید کیا کہنا تھا, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. لوکل باڈیز کا نظام بدترین حال میں ہے. ہم نے ایک بل بھی تیار کیا ہے جو ہم اسمبلی میں پیش کریں گے جیسے ہی اسمبلی کے دفاتر کھلیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کورٹ میں بھی موو کر رہے ہیں کہ آرٹیکل 140 بھی ہو, اسپیکر کو ڈی سیٹ کیا جائے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے وزیر اعظم پاکستان سے اپیل کی ہے کہ فوری طور پہ آرٹیکل 235 کا اطلاق فائنینشیل ایمرجنسی صوبہ سندھ میں لگائی جائے, اس سے کہ اس صوبے کی حکومت عوام کی تباہی کی ذمہ دار ہے. وہ ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے کہ لوگ جو اتنے بے روزگار ہوئے ہیں ان کو روزگار کیسے دے. وہ روزگار. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ بھارت بلوچستان میں دہشت گردی کو ہوا دینے میں ملوث رہا, اب بھی بلوچستان میں سازشیں کر رہا ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے صدر کو ایک خط لکھ رہے ہیں جس میں انہیں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا جائے گا. بھارت پاکستان میں جعلی کارروائی کا بہانہ تلاش کر رہا ہے. OIC نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکومت کی جانب سے متعارف کرائے جانے والے جموں اینڈ کشمیر برانچ آف ڈومیسائل سرٹیفکیٹ رولز کو مسترد کر دیا ہے. اسلامی تعاون تنظیم کے انسانی حقوق کے بارے میں آزاد مستقل کمیشن نے کہا کہ دنیا کورونا وائرس کی وبا کی روک تھام کی کوششیں کر رہی ہے اور بھارت اس موقع کو مقبوضہ جموں و کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریتی آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے گھنونے ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کر رہا ہے. کمیشن نے کہا کہ یہ چوتھے جنیوا کنونشن کی شق 27 اور 49 سمیت انسانی حقوق کے عالمی معاہدوں کے تحت کشمیری عوام کو دیے جانے والے انسانی حقوق کی صریحاً خلاف ورزی ہے. راولپنڈی چیمبر آف کامرس نے حکومت سے آئندہ بجٹ میں GST کو 5% تک لانے اور شرح سود کو 4% تک لانے کا مطالبہ کر دیا. چیمبر آف کامرس کے عہدیداروں کا کہنا تھا کہ معاشی پہیہ دوبارہ چلانے کے لیے مراد دی جائیں, چھوٹے تاجروں کے لیے مراعاتی پیکج کا اعلان کیا جائے. صدر راولپنڈی چیمبر آف کامرس صبور ملک کا کہنا تھا کہ کورونا کی وجہ سے معیشت زبوں حالی کا شکار ہے. امید ہے حکومت کاروباری افراد کو مراد فراہم کریں گے اور رواں مالی سال کی بجٹ میں بزنس کمیونٹی کے مسائل پر ریلیف دے گی. اور اب علاقائی خبریں. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد ناصر خان سیال نے پولیس کے شہدا کے گھروں میں جا کر شہدا کی فیملیز میں عید گفٹ, نقدی اور راشن پیکج تقسیم کیا. پولیس کے جوانوں کی ملک و قوم کے لیے دی گئی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. منڈی بہاؤدین ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ناصر خان سیال نے عید کی خوشیوں میں پولیس کے شہدا کے لواحقین کو شریک کرنے کے لیے ان کے گھروں پر جا کر عید گفٹ, نقدی اور راشن پیکج تقسیم کیے ہیں.
इलाकाई खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं। हाला हेस्को का पुलिस के हमरा शहर भर में बिजली चोरों और बिल अदा न करने वालों सारिफीन के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। हेस्को मुलाजमीन की भी डायरेक्ट लाइनें काट दी गई। SDO हेस्को हाला गयासुद्दीन शेख का कहना था कि बिजली चोरी में मुलव्वस 6 अफराद के खिलाफ हाला थाने में अलग अलग मुकदमा दर्ज करवा दिए गए। कार्रवाई में 100 से ज्यादा कुंडे लगाकर बिजली चोरी, हजारों मीटर PVC तार और 25 से ज्यादा बोगस बिजली के मीटर भी पकड़ लिए गए हैं। ईद करीब आते ही मुंशियारी जिला के बाजारों में अवाम की बड़ी तादाद शॉपिंग करने पहुंच गई। लॉकडाउन में हुकूमती नरमी में SOPs के अहकामात पर जिला भर में अवाम ने हवा में उड़ा दिए SOPs। बाजारों में खरीदारी करने वालों का रश। हुकूमत कोरोना वायरस एहतियात SOPs पर अमल न करा सकी। दीपालपुर के इलाके हवेली लखा में म्यूनिसिपल कमेटी की मुबैना गफलत से 10 साला बच्चा गटर के खुले मेन होल में गिर गया। 20 घंटे बाद भी बच्चे को ना निकाला जा सका। रेस्क्यू का गंदे पानी में काम करने से इनकार। म्यूनिसिपल अमला बच्चे को निकालने में मसरूफ अमल। वालिदैन गम से निढाल हो गए। सांकर पुलिस का झूल और पीरो मिल के इलाके में अलग अलग पुलिस मुकाबले 2 डाकू हलाक हो गए। पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले डाकुओं की शनाख्त सोमार मेहर और अली हैदर के नाम से हुई है। मारे जाने वाले डाकुओं से कलाशिनकोव और दीगर असलहा भी बरामद कर लिया गया है। माह सयाम में अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और सीनियर वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर खुर्शीद आलिम वारबर्टन में सब्जी, फल समेत दीगर अशिया खुरनोश की दुकानों का दौरा करके कीमतें चेक की। डॉक्टर खुर्शीद आलिम ने वारबर्टन शहर में कार्रवाई करते हुए हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा कीमतों से जायद वसूल करने पर मुतअद्दिद दुकानदारों पर हजारों रुपए जुर्माने आयद किए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं। तहसील सालेपत में 2 ग्रुपों में अराजी के तनाजे पर झगड़ा हो गया। फायरिंग की जद में आकर 28 साला शख्स जाँ बहक हो गया। टालपुर और शंपानी बरादरियों के 2 ग्रुपों में जमीनी तनाजे पर झगड़ा हुआ। फायरिंग करके शंपानी बरादरी के 1 शख्स को कत्ल कर दिया गया, जबकि टालपुर बरादरियों के भी 2 शख्स जख्मी हो गए। स्पेशल मजिस्ट्रेट प्राइस कंट्रोल की हेडमराला और गिरदनवा में गरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां। महंगी अशिया खुरनोश फरोख्त करने वाले दुकानदारों को जुर्माने किए गए। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट की हिदायत पर स्पेशल मजिस्ट्रेट प्राइस कंट्रोल परवेज इकबाल संतराना ने अशिया खुरनोश सरकारी निर्खों से महंगी फरोख्त करने वाले दुकानदारों को हजारों रुपए जुर्माने किए। पतोकी के इलाके फूलनगर बाईपास पर हादसा। मवेशियों से भरा ट्रक तेज रफ्तारी के बायस उलट गया। मवेशियों से भरा ट्रक तेज रफ्तारी के बायस उलट गया। ट्रक बहावलनगर से लाहौर जा रहा था। हादसा में 1 शख्स इस मौका पर जाँ बहक, जबकि 7 अफराद शदीद जख्मी हो गए। और अब टुडेज इंटरनेशनल। आलमी उफक से खबर यह है कि सऊदी अरब में कूड़े मारने की सजा को बाज़ाबिता खत्म कर दिया गया। अब कूड़ों के मुतबादिल तौर पर जेल या जुर्माने या दोनों सजाएं दी जाएंगी। सऊदी अरब की वजारत इंसाफ ने ट्विटर पर जारी बयान में कहा कि अब कूड़ों के मुतबादिल के तौर पर जेल या जुर्माने या दोनों सजाएं दी जाएंगी। अदालतें मुकदमात की समाअत करेंगी, इनका जायजा लेंगी और हर मुकदमे का इसकी नौइयत के एतबार से मुंसिफाना फैसला करेंगी। आलमी वबा कोरोना वायरस के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल के पहली परवाज फलस्तीनी अवाम के लिए तिब्बी इमदाद के लिए लेकर तिल अबीब चली गई। इमाराती हुकाम के मुताबिक परवाज इंसानी बुनियाद पर फलस्तीन में कोरोना वबा से निपटने के लिए हिफाजती सामान पहुंचाने के लिए भेजी गई, जिसमें फलस्तीनी अवाम के लिए तिब्बी इमदादी सामान पहुंचाया गया। इमाराती हुकाम का कहना है कि इंसानी बुनियाद पर कार्गो फ्लाइट अबू जबी से तिल अबीब भेजी गई है। आलमी बैंक ने मुतनब्बा किया है कि आलमगीर वबा कोरोना से दुनिया भर में 6 करोड़ अफराद इंतहाई गुर्बत का शिकार हो सकते हैं। आलमी बैंक के सदर का कहना है कि पूरी दुनिया को इस वक्त आलमगीर वबा का सामना है, जिसके बायस तवक्को की जाती है कि इमसाल आलमी मुआशी शरहनमू 5% कम हो जाएगा। तखमीने के मुताबिक कोरोना वायरस जल्द ही 6 करोड़ अफराद को इंतहाई गुर्बत में धकेल देगा।
برطانیہ نے کورونا وائرس سے نمٹنے میں ناکامی پر اپنے ہی سائنسدانوں کو مورد الزام ٹھہرا دیا۔ برطانوی کابینہ کی رکن کا کہنا ہے کہ حکومت کو طبی ماہرین کی جانب سے غلط مشورے دیے گئے اور ہم نے ہر قدم سائنس کے مطابق اٹھایا۔ سائنٹیفک ایڈوائزری گروپ فار ایمرجنسیز کی جانب سے مسلسل تجاویز دی جاتی رہیں۔ برطانیہ کے چوٹی کے سائنسدان سر ایڈریان اسمتھ نے کہا کہ برطانوی وزراء کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے کہ وہ بالکل ویسا ہی کر رہے ہیں جیسا کہ طبی ماہرین مشورہ دے رہے ہیں۔ عالمی وبا کورونا کے بعد بھارت اور بنگلہ دیش نئی مشکل میں پڑ گئے۔ سمندری طوفان مشرقی بھارت اور بنگلہ دیش کے ساحل سے ٹکرا گیا۔ سمندری طوفان ساحل سے ٹکرانے کے بعد بھارت اور بنگلہ دیش کے ساحلی علاقوں میں طوفانی بارشوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ شدید بارش کے بعد مٹی کے تودے گرنے کے واقعات بھی رونما ہوئے ہیں۔ کمبوڈیا ایشیا کا سب سے پہلا کورونا فری ملک بن گیا۔ 12 اپریل کے بعد کمبوڈیا میں کوئی کیس رپورٹ نہ ہوا۔ تمام متاثرہ مریض صحت یاب ہو گئے، ہسپتال سے ڈسچارج کر دیے گئے۔ کمبوڈیا میں 27 جنوری سے 12 اپریل تک 122 کورونا کے کیسز رپورٹ ہوئے تھے۔ سخت احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کے بعد کمبوڈیا میں کورونا کا کوئی کیس اب باقی نہیں رہا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے۔ مشکلیں آزمائشیں ہمارے عزم کا امتحان ہوا کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہمیں رسد بھی پہنچاتا ہے اور مدد بھی۔ ہمارے ہاتھوں کی تنظیم کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو آتا ہے وہ تقسیم کرتے ہیں۔ ہم کبھی انکیوبیٹر کبھی وینٹیلیٹر بن کر اٹکتی رکتی سانسوں کی جان ہوا کرتے ہیں۔ غم کی گھٹاؤں میں خوشی کی آغوش بن جاتے ہیں ہم، اور کڑکتی دھوپ میں سائبان ہوا کرتے ہیں۔ مسجد، مندر اور کلیساؤں تک، شہر شہر سے گاؤں تک، ہم سارا پاکستان ہوا کرتے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن، خدمت کے سفر میں تم اکیلے نہیں۔ میں ہوں علی طارق، کھیل کے میدانوں میں کیا ہو رہا ہے میں رکھوں گا باخبر سب سے پہلے۔